Hello students, today we are going to start our last topic in the chemical effects of electric current. That is what is the chemical effect on the electric current. Generally we have studied the conduction of electricity, good conductor and bad conductor. What will happen in the effects of the good conductor, what will happen of the effects of electric current onto the bad conductors. Okay, so for that we have already studied about the conductor's definition, insulator definition. Generally the substance which allows electricity to pass through them are called the conductor. Generally which are not allowed the electricity to pass through them, these are called the insulator. Okay, but conductors have the two different types, that are the good conductor and bad conductors. If you want to more, if you do more work to pass the electric current through them, then suppose the electric current will be passed, then it is called as the bad conductor. It is not called the insulator, because it will pass the electricity but you have to do some types of work to passing through them. Then in the last lecture we have studied about, if you want to make the liquid into the conductor state, then you have to soltide them. Okay, so for that we have do already an activity for that, regarding that कि भाई क्या करना पड़ेगा. हम लोगों को एक बल्ब लिया था, हम लोगों ने एक स्विच लिया था, फिर एक हमने बैटरी जोड़ा था, बैटरी के साथ साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया था. देन सपोज कि अगर मैंने सॉल्टी वाटर के अंदर से वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, then अगर my bulb will be start glowing, then I can say that the electricity will be passing from the one electrode to another electrode. Okay, उसके बाद आज हम लोगों का टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. तो ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे कोई सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो कोई केमिकल रिएक्शन तो करवाएगा ही. तो अब वो केमिकल रिएक्शन का मैं इस्तेमाल जो है वो किस तरह से कर सकता हूँ. So for that I can use the electroplating process, I can use the electrolysis process. अब electroplating और electrolysis क्या है उसके बारे में अभी देखेंगे. फर्स्ट है हमारा एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर. सपोज कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे वाटर से, देन वाटर डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज डिपोजिटेड ओवर द नेगेटिव पोल and oxygen is deposited over the positive pole. Deposited of hydrogen and oxygen at different pole is visible in the forms of bubble. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज़्यादा पास करेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव की ओर खींचे चले जाएंगे और नेगेटिव आयंस होंगे जो पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे. सो वी कैन सी दैट फ्रॉम द बबल्स. ओके, हम लोग ये जो चेंज हो रहा है, आयंस जो चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के सामने अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका मेन रीजन हम लोग देख कैसे सकते हैं, तो वो बबल्स के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं. देन द सेकेंड एग्जांपल इज when electric current is passed through the solution of a metal salt such as the solution of copper sulfate, metal gets deposited at the negative pole because the metal is positively charged. Okay, अगर मैं कोई मेटल सॉल्ट ले लेता हूँ, जैसे कि हो गया कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होता है, CuSO4. तो कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर जो है वो मेटल है, जबकि सल्फेट जो है वो सॉल्ट वाला पोर्शन लेके बैठा है. तो अगर मैं कोई आयंस इसको किसी पानी के अंदर डाल दूँ तो जनरली क्या होगा, कॉपर जो है वो पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे और सल्फेट जो है वो अलग से निकल जाएंगे. ओके, sometimes the color of the solution also changes when the electric current passes through it. कई बार क्या होता है कि कलर भी चेंज होता है. The above examples are some of the chemical effects of electric current. The chemical reaction depends upon the types of solutions. So these are the few examples and few processes that we have to study. First is the electrolysis experiment. इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है हम लोगों को कि अगर मान लो कि कोई सॉल्टी वाटर को या तो मैं किसी चीज़ को इसमें डाल दूँ, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव को खींचेंगे और नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव को खींचेंगे. अब इसका इस्तेमाल जो है वो मैं इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस में कर सकता हूँ. ये पूरी प्रोसेस का इस्तेमाल मैं कहाँ पर करूँगा, इलेक्ट्रोलाइट वाले के अंदर. ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है. जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज दी वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक तो क्या है वो केमिकल इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट की. अब उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए होगा. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो वो एक लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करता है 1 पॉइंट टू
another point. That points will be considered as the conductors or electrodes, or you can say that anode and cathode. This will be whatever you want to say. ओके जनरली मेरा काम क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस जो है वो क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को मेरे को पानी के अंदर से पास करवाना है और उसकी वजह से कोई ना कोई जो है वो केमिकल रिएक्शन करवाना है. ओके अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ इनटू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द केमिकल प्रोसेस यूजिंग द विच अ मेटल इज कोटेड विद द लेयर ऑफ अनदर डिजायर्ड मेटल. यानी कि एक मेटल को मैं कोटिंग का लेयर चढ़वा सकता हूँ. ओके मतलब मान लो कि एक कोई आपके पास मटेरियल है, ऑलरेडी एक मटेरियल है मेटल का बना हुआ, और उसके ऊपर आपको सिल्वर का या तो फिर दूसरे किसी मेटल का क्या करवाना है, लेयर चढ़वाना है, कोटिंग करवाना है, ताकि वो पूरे लंबे समय तक खराब ना हो. तो वो कोटिंग का जो पूरा प्रोसेस होगा वो मैं कैसे करवाऊंगा, वो करवाऊंगा मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस की वजह से. अब वो कैसे करवाता वो आगे देखना है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू मेक द मेटल शाइनी. एक तो वो क्यों करवाते हैं हम लोग, शाइनी बनाने के लिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस की ज़रूरत क्या है, ताकि जो मेटल्स दूसरे मटेरियल्स है वो हम लोगों को शाइनी दिखे, इसके लिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ओवर द आर्टिकल्स मेड ऑफ द आयन टू मेक द आयन शाइनी एंड टू प्रिवेंट द आयन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. और दूसरा ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्टेड यानी कि कोरोड होने से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस करवाते हैं. ओके अब प्रोसेस किस तरह से होती है वो जरा स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखो. एक तो आपको स्क्रीन के अंदर दो चीजें दिख रही. अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव जो होता है वो सेल का हिस्सा, अगर वो उसको मैं किसी के साथ कनेक्ट करूँ then it will be called as the anode. ओके उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड कहेंगे. नेगेटिव हिस्सा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कैथोड. यहाँ पर देखो इसको जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, और ये छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे. इसके साथ मैंने जो भाई को कनेक्ट किया है उसको मैं क्या बोलूँगा, एनोड बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कैथोड. ओके इतना तो समझ में आ ही जाएगा. अब प्रोसेस स्टार्ट करनी है भाई साहब हमको. ओके चलो करते हैं स्टार्ट. इन दी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन इन दी कंटेनर. पहले तो हम लोगों ने क्या लिया है, मेटल सॉल्ट कंटेनर लिया है. ओके मतलब कि सॉल्ट वाला हम लोगों ने क्यों लिया है, जरा आप लोगों को बताओ तो जरा कि सॉल्ट वाला ही क्यों, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाए. भाई कल पता है ना हम लोगों ने रिसर्च किया था, तो आप लोगों ने बताया था कि भाई जो सॉल्ट वाटर होता है उसी के अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द प्योर वाटर. यू हैव टू डू सम टाइप्स ऑफ मोर प्रोसेस ऑन इट. Okay, if you want to pass through the electricity from the pure water, then you have to do some types of more work. But into the salt water, it can easily transfer. Okay, तो सॉल्ट वाटर ले लिया है. सॉल्ट वाटर के साथ साथ हमने सॉल्ट ऑफ मेटल इज चूजन विच इज टू बी कोटेड ओवर अनदर मेटल. अब ये जो सॉल्ट वाटर लिया साथ साथ मैंने क्या डाल दिया है, एक मेटल मटेरियल डाल दिया है इसके अंदर. अब मेटल मटेरियल वो डालना है जिसका आपको कोटिंग करवाना है यहाँ पर एनोड के ऊपर. मतलब कि एनोड यानी कि इसके ऊपर. ओके इस मटेरियल के ऊपर जो भी आपको कोटिंग करवाना है, मतलब मान लो कि ये अभी जो है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है. चलो फॉर एग्जांपल इट इज बना हुआ है एल्यूमिनियम. अब इसको मेरे को गोल्ड का कोटिंग चढ़ाना है, तो मैं गोल्ड के कोटिंग को किसके साथ मिक्स कर दूंगा, यहाँ पर सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सअप कर दूंगा यहाँ पर. ओके सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स कर दूंगा गोल्ड को. अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई. जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करूंगा, यहाँ से जो सारे मेटल्स के आयंस होंगे वो धीरे 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 करके कहाँ पर चिपकेंगे, यहाँ पर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके क्योंकि हमको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं, और नेगेटिव आयंस किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं. ओके तो वहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हमारा कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो है वो आपको गोल्ड हिस्सा जो दिख रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो गोल्ड है वो वहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा. तो इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है. तो आज आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. यू हैव टू राइट ड्रॉ एंड एक्सप्लेन
electroplating process. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर हम लोग हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, अगर कोई भी किस्म का डाउट हो, ये जो यूजेस हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो कहाँ कहाँ पर करते हैं एक जरा देख लेते हैं। तो जनरली वाटर पाइप्स के अंदर, क्योंकि वो आयरन के बनी हुई है, तो कोटिंग करने के लिए वहाँ पर करते हैं। ओके, फिर हो गया व्हील्स के, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं वहाँ पर हम लोग उसकी जो रिंग्स होती है वहाँ पर करते हैं। कार्स के अंदर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई है, तो इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। ऑर्नामेंट्स जो बने हुए हैं तो सिल्वर से बना सकते हैं, चीप मेटल्स का इस्तेमाल करना होता है तो कर सकते हैं हम लोग। टीन कैंस को बनाने के लिए, उसके ऊपर कोटिंग लेयर चढ़ाने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर कोई भी किस्म का डाउट है तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग लिख लो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ electroplating. So okay. So if you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and we will see in the next lecture. We have to start the next chapter in the next lecture. Okay. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।